Hi everyone, welcome back. So today we are going to discuss Act 1, Scene 2. We have already completed Scene 1. So now we are on Scene 2. We are going to start that. So where is the scene occurring? Okay, so the scene is occurring or scene is set in a room in Portia's house in Belmont. Portia lives in Belmont and there is a room in Portia's house, and there Portia and Nerissa, they are conversing something or they are talking something. So what happens in this scene is okay, so here Portia discusses with her maid Nerissa the scheme of lottery of caskets. Okay, so the plan, the scheme which is made by the will of her father. Okay, in last video also explained you that according to her father, according to her father's will, there are three caskets: golden casket, lead casket, and silver casket. And the one which is containing the Portia's portrait, that is the correct or the right casket, and the person who chooses that casket is the true lover of Portia, and he would be married to Portia immediately. So some of the suitors have already come, but Portia disliked all of them in this scene. So Nerissa at the end, okay, almost at the end, tells her of Bassanio, whom she had found attractive. So Nerissa tells her of Bassanio, and Portia also feels some sort of feelings for Bassanio. So we are going to start. Okay, first is a speech of Portia. By my troth, Nerissa, my little body is aweary of this great world. So what she is saying, that by my troth means a mild form of oath, we can say, like we are saying I swear. Okay, I swear, or by my faith. Okay, honestly or truly. Okay, Nerissa is the maid of Portia. My little body is referred to the body of Portia, that is Portia. So she is saying I am aweary. Aweary means tired. I am tired of this great world. So what do Nerissa say after this? Okay, so it's important, so please listen it carefully. So you would be sweet, madam, if your miseries were in the same abundance as your good fortunes are. So what Nerissa is saying, it's a bit of negative talk which she is saying to Portia. Nerissa is saying that you would have been tired, madam, you would have been tired, Portia, if your miseries means if your problems would be in the same abundance, means would be of the same amount as your good fortunes are. Like a person who has good luck, if the solutions are there and the problems are less, the person do not feel any type of tension, but the problems are also there, and solutions and fortunes means luck is also there, so then the person is tired. So she is saying if your problems were also in the same amount as your good fortunes are, means as if you would have problems and solution in the same quantity, then you would be having any type of tired feeling. But you should not be tired because you are very fortunate and you have no worries. Okay, and next what she is saying, and yet for aught I see, they are as sick that surfeit with too much as they that starve with nothing. So what she is saying, that a person who is very rich, okay, who is overfed. Okay, surfeit means overfed. Here it's given, surfeit means overfed. The person who is surfeited means overhead, that person also suffers the same as a very poor person suffers. Okay, सो उसके कहने का मतलब क्या है कि एक बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी और एक बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी, ये दोनों एक ही जैसा सेम ही क्वांटिटी में सफ़र करते हैं. ओके, सो
Then next what she is saying, it is no poor happiness therefore to be seated in the mean. So she is saying that when ek jo see, like we have a poor person and we have a rich person. The person who is middle class, who is in the middle, not very poor, not very rich, the person who is in the middle, not very poor, not very rich, he has not very small amount of happiness, he has enough happiness. Okay, so this thing she is trying to say, no mean means here no mean means say the not small quantity, not small quantity. So next what she is saying, superfluity comes sooner by white hair but competency lives longer. So what she is saying, those who have so much of anything, means those who are overfed, those who are surfeited, okay, they will grow old sooner, means वो जल्दी ही बूढ़े हो जाते हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है क्योंकि वो काम नहीं करते हैं. बट कंपिटेंसी lives longer, मतलब कि जिन लोगों के पास, those who have just enough to survive, मतलब कि जिनको enough है, जिनके पास enough है, ना ही वो rich है ज़्यादा, ना ही वो ज़्यादा poor है, so they live longer because they work continuously. So after this what Portia says, तो ये सब इसमें ये बताया कि ये जो Portia, she is just saying that Portia should not be worried because she is not having any type of worries and she is having good fortunes. Means the person is tired when he is having the worries also and good fortunes also in the same amount, but she is having good fortunes more than the worries. Okay, मतलब उसके पास luck ज़्यादा है. Okay, problem से. And then next what she is saying, that गरीब आदमी और एक रिच आदमी, ये दोनों एक ही जैसा सफ़र करते हैं. देन द पर्सन हु इज़ प्रेजेंट इन द मिडल, मीन्स ना ही वो जो आदमी, ना ही वो ज़्यादा रिच हो, ना ही वो ज़्यादा पुअर हो, दैट पर्सन हैज़ इनफ हैप्पीनेस. ओके, एंड दैट पर्सन डू नॉट गेट older easily, but the person who is overfed, who is surfeited, that person gets white hair easily, means he gets old easily. So next Portia says what, good sentences and well pronounced. So what she is saying, good point and well spoken. So she is saying very good, you spoke well and good thoughts and good point. So Nerissa is also now giving negative comment here. Nerissa is saying they would be better if well followed. So वो कह रही है कि ये और भी ज़्यादा आपको अच्छे लगेंगे पोशिया मैम अगर आप इसे फॉलो भी करो, अगर आप इसे ओबे भी करो. सो आगे पोशिया की भी कोई नेगेटिव रिप्लाई आ रहा है, वो भी हम डिस्कस करते हैं. पोशिया, इट्स इम्पॉर्टेंट, if to do were as easy as to know what were good to do, chapels had been churches and poor men's cottages princes palaces. So what she is saying, up to here you first listen from me what she is saying here. Up to here what she is saying, if to do were as easy to know what were good to do, मतलब कि अगर कहना इतना आसान है होता, अगर कहना इतना आसान है और अगर कहना इतना आसान तो होता ही है, अगर करना भी इतना आसान होता तो जो चैपल्स होते हैं, चैपल्स आपको मैं बताती हूँ जो हमारे घर में भी होते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं. यहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी होती है, ये वुडन होता है और हम इसे वॉल के साथ लगाते हैं लाइक दिस. ओके, सम चैपल मीन्स अ स्मॉल प्रेयर रूम. तो वो कहती है कि अगर बोलना भी आसान होता और करना भी आसान होता तो आज जो वो छोटे छोटे प्रेयर रूम्स होते हैं वो आज बड़े बड़े चर्चेस होते, और जो गरीबों के घर हैं जो बहुत ही टूटे फूटे हैं वो आज एक पैलेसेस की तरह होते. मीन्स अगर लोग अच्छा जानते हैं और अगर वो करते भी हैं अच्छा वो ये कह रही है कि बोलना आसान होता है पर करना मुश्किल.
ठीक है, अगर ये करना भी आसान होता तो आज छोटे छोटे जो प्रेयर रूम्स हैं वो चर्चेस बने होते, और छोटे जो पुअर पीपल हैं उनके जो घर हैं वो आज एक पैलेसेस बन जाते. सो अप टू दिस शी इज सेइंग दिस थिंग, पैलेसेस तक. इट इज़ अ गुड डिवाइन दैट फॉलोज हिज ओन इंस्ट्रक्शन. वो डिवाइन का मीनिंग पता क्या होता है? डिवाइन का मीनिंग होता है प्रीचर. डिवाइन का मीनिंग होता है प्रीचर. हियर इट्स गिवन. प्रीचर मीन्स जो चर्चेज में होते हैं ना, पीपल who are like pandit we are saying in temples, like that only. Preachers are the people who are living in the church and they are doing the management of the church. So like the pandit only, okay. So they are saying it is a good divine that follows his own instructions. Means like pandit hote hain, they give their instructions that do this and do this, you would get this is good thing, this is good, this is bad. So if they also just follow their own instructions, like they have told that kabhi paap nahi karna, but some of the pandit people, they do some of the sins, that is wrong. So Poshi is saying this thing only, agar koi preacher, agar koi pandit अपनी भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, अपनी अच्छी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें तो वो बहुत ही अच्छी बात है, बट दे आर नॉट फॉलोइंग, वी नो वेल. आई कैन ईजियर टीच 20 वॉट वर गुड टू बी डन. तो वो कह रही है कि ये मैं बहुत ही आसानी से 20 लोगों को सिखा सकती हूँ कि क्या अच्छा है उनके लिए, बट दैन टू बी वन ऑफ द 20 टू फॉलो माइन ओन टीचिंग. पर उनमें से एक भी शायद, आई थिंक नॉट इवन 1%, या एक आदमी कर भी सकता है, नॉट इवन 1% कैन फॉलो दोज टीचिंग्स. मतलब कि बोलना आसान है पर करना मुश्किल है. द ब्रेन में डिवाइस लॉज फॉर द ब्लड. मतलब कि जो हमारे दिमाग है वो लॉज तो बना सकता है हमारी बॉडी के लिए, बट अ हॉट टेम्पर लीव्स ओवर ए कोल्ड डिक्री. ओके, बट जो हमारा मन है, हमारा डिज़ायर है, हमारी इच्छा है, वो हमें जो हार्ड लॉज होते हैं, मतलब कि जो हमें डिफ़िकल्ट लगते हैं, उनको डिसओबे करते हैं, दे डिसफॉलो दैट. हमारा दिमाग तो कहता है कि ये काम करो, लाइक वी वांट टू वेक अप एट 4 o'clock, बट आवर ब्रेन सेज दैट यू हैव टू वेक अप एट 4 o'clock. बट आवर डिज़ायर, आवर विल, आवर विश, हमारा मन वो कहता है कि नहीं, हम ये फॉलो नहीं करेंगे, एंड वी जस्ट snooze the alarm and again we go to sleep. So this thing they are saying, such a here is madness to skip over the meshes of good counsel. तो वो ऐसे बोल रही है कि जो यूथ है आज का जो यूथ है वो here is what, here is a rabbit. okay, so एक जो यंग रैबिट होता है ना, वो ना नेट्स होते हैं ना, जो नेट्स, आई विल टेल यू व्हाट आर दोज नेट्स. लाइक हियर अ नेट इज देयर, द यंग रैबिट जम्प्स विद ग्रेट एनर्जी, अ यंग रैबिट. लाइक दैट ओनली the youth do not follow the instructions given by the parents or the good advice, so they just jump over those good advices. This only she is saying. But now from here she is saying, but this reasoning is not in the fashion to choose me a husband. but वो कह रही है कि ये कोई रीज़न नहीं बनता है कि मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं चूज़ कर सकती. ओ मी द वर्ड चूज़. सो शी इज सेइंग मेरे लिए वर्ड चूज़ होना ही नहीं चाहिए. ये जो चूज़ वर्ड है ये मेरी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए था. ओके, सो आई मे नाइदर चूज़ whom आई वुड. मतलब कि ना ही मैं चूज़ कर सकती हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ, और ना ही मैं जिस आदमी को नहीं पसंद करती उसको रिफ्यूज़ कर सकती हूँ. ओके, सो इज़ द विल ऑफ ए लिविंग फादर कर्ब्ड बाय द विल ऑफ ए डेड फादर. तो वो कह रही है एक जिंदा बेटी को एक मरे हुए पिता की विल, मतलब उसकी एक मरे हुए पिता की इच्छा ने रोका हुआ है, रिस्ट्रिक्ट किया है. कर्ब्ड का मीनिंग क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड. ओके,
कर्ब्ड का मीनिंग क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड. हेयर कर्ब वर्ड इज गिवन, दैट मीन्स रिस्ट्रिक्टेड. यू कैन राइट देयर. ओके, सो इज इट नॉट हार्ड नेरिसा? नाउ शी इज आस्किंग दैट ये बहुत ही मुश्किल नहीं है नेरिसा कि मुझे वो पर्सन अपना हस्बैंड मानना ही होगा जो राइट कास्केट चूज करेगा. ओके, दैट आई कैनॉट चूज वन नॉर रिफ्यूज नन. मतलब कि ना ही मैं चूज कर सकती हूँ और ना ही मैं किसी को रिफ्यूज कर सकती हूँ. सो नेरिसा इज सेइंग, your father was ever virtuous and holy man at their death had good inspirations. तो कहती है आपके जो फादर थे, he was of great virtues, he was a very holy man, he was a very religious man, he was having good manners and he was a good person. And holy man means जो अच्छे लोग होते हैं at their death, जब वो मरने वाले होते हैं, have गुड इंस्पिरेशंस, मतलब कि उनके वो हमें अच्छी गाइडेंस देते हैं. इसी गाइडेंस मीन्स कि जैसे उसके फादर हैं, पोर्शिया के फादर, उन्होंने अपने डेथ के टाइम पे क्या किया? गुड इंस्पिरेशन, मतलब उन्होंने पोर्शिया को गाइडेंस दी कि जो भी आदमी आपको सच्चे दिल से प्यार करेगा, दैट वुड बी योर हस्बैंड एंड ही वुड हैव टू चूज फ्रॉम द कास्केट्स. ओके, that is gold, silver and lead casket. Okay, so therefore the lottery that he had devised in these three chests of gold, silver and lead, whereof who chooses his meaning chooses you will no doubt never be chosen by any rightly but one who you shall rightly love. तो वो कहती है कि कोई भी आदमी, ये तीन जो चेस्ट दी हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड लेड, इनमें से एक जो राइट चॉइस है वो सिर्फ एक ही आदमी चूज कर सकता है, दैट हु लव्स यू ट्रूली. बट वॉट वार्मथ इज देयर? What is there is your warmth towards any of these princely suitors that are already come. तो अब वो कह रही है कि अभी जो suitors आए हुए हैं, the suitors who had already come, आपके मन में उनके लिए कोई affection की भावना है या नहीं? So Portia is saying, I pray thee overname them, and as thou namest them I will describe them, and according to my description level at my affection. तो वो कहती है you have to just I request you that you have to speak out their names, I will describe them, and according to my description you can just level up my affection, that how much I feel for the person. So first Nerissa speaks about Neapolitan prince. Okay, so Portia is saying Nerissa is saying first there is a Neapolitan prince. Okay, so the Neapolitan prince, he has come from Naples. So Portia is saying, hey, that's a colt indeed, means वो एक बहुत ही inexperienced person है. For he doth nothing, उसे कुछ नहीं आता, but टॉक्स ऑफ हिज हाउस, मतलब कि सारा टाइम वो हमेशा घोड़ों की ही बात करता रहता है और उसे कुछ भी नहीं आता. एंड ही मेक्स इट अ ग्रेट अप्रोप्रिएशन टू हिज ओन गुड पार्ट्स दैट ही कैन शो हिमसेल्फ. तो वो कह रहा है कि वो हमेशा अपनी प्रेज करता रहता है और वो कहता रहता है दैट आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, ही इज़ ऑलवेज प्रेजिंग हिमसेल्फ ओनली. सो कि वो प्रेज करता है, क्यों करता है? क्योंकि एक ना जो हम घोड़े का पैर होता है, लाइक दिस होता है, एक घोड़े के पैर के लिए एक शू आता है. ओके, लाइक दिस, इट्स मेड ऑफ आयरन. ओके, लाइक दिस पार्ट. ओके, तो वो ही इज प्राउड दैट ही कैन जस्ट shoe his horse means he can just make his horse wear shoes. तो वो उसके लिए, क्योंकि हॉर्स को कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, तो वो इसके एग्जांपल देता रहता है कि आई कैन जस्ट मेक माई हॉर्स वियर द शूज़, एंड सो ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, ही इज़ ऑलवेज एप्रिशिएटिंग हिमसेल्फ ओनली. आई एम मच अफियर माई लेडी, हिज मदर प्लेड फॉल्स विद अ सिमित. तो वो कह रही है कि जो मीन्स पोर्शिया नेरेसा को बता रही है कि उसकी जो मदर होगी नेपोलिटन प्रिंस की, उसका जो सिमित होता है, सिमित मीन्स जो ब्लैक स्मिथ होता है, जो आयरन वगैरह का कोई चीज़ बनाता है, वो उसके साथ उसका कोई अफेयर होगा. वो इस बात को क्यों कह रही है, इस बात को उसने यहीं पे क्यों कहा कि उसकी जो मदर है उसका कोई ब्लैक स्मिथ के साथ अफेयर होगा? बिकॉज जो होता है ना हमारा आयरन का जो शू होता है,
जो एक घोड़े के फीट्स पे लगाया जाता है वो आयरन का बना होता है, तो वो बोलती होगी कि वो इस ब्लैक स्मिथ ने ही बनाया होगा. सो दिस थिंग शी इज सेइंग. नेरिसा, अब नेरिसा दूसरे आदमी के बारे में बता रही है, दूसरे शूटर के बारे में. देन इज देयर द काउंटी पैलेटाइन. अब काउंटी पैलेटाइन वो पैलेटाइन से आया है, जो एक राइन वैली के पास एक रीजन है, वो पैलेटाइन है. तो वहाँ का एक काउंट है, मीन्स वहाँ का एक नोबल है. सो पोर्शिया सिंह, he doth nothing but frown. Frown means he is always in a very depressed, sad or serious mood, we can say. Okay, he is always looking serious. He doth nothing but frown as who should say, and you will not have me choose. तो वो कहती है कि उसे देख के तो ऐसा लगता है, वो उसे देख के ऐसा लगता है कि वो मुझे बोल रहा है कि अगर तुम मुझे नहीं भी चूज़ करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं. इफ़ यू डोंट चूज़ मी देन डोंट चूज़. ओके, तो वो उसको कोई चिंता ही नहीं है. ही इज़ नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ टेंशन दैट आई वुड विन पोर्शिया और नॉट. So he is very serious person and he is very careless person. He is not having any tension that he would get Portia or not. He is saying, if you don't choose me, okay, then good. Okay, so he hears merry tales. Okay, and smiles. So वो बोलती है, Portia is saying that the county palatine, if he make him hear very funny or comedic stories, then also he do not smile. I fear he will prove the weeping philosopher when he grows old, being so full of unmannerly sadness in his youth. तो वो बोल रही है कि अगर वो अपने यंग पीरियड में, अपने यूथ में भी इतना ज़्यादा सीरियस है, इतना ज़्यादा है वो सीरियस, इतनी ज़्यादा सैडनेस है, ही सो फ्राउनिंग, देन व्हाट वुड हैपन इन द ओल्डनेस? ही वुड जस्ट क्राई एंड क्राई ओनली in whole oldness. Okay, I had rather be married to a death's head with a bone in his mouth than to either of these. God defend me from these two. तो वो बोल रही है कि मैं एक हड्डियों के ढांचे से शादी कर लूँगी, बट इन दोनों लोगों से शादी नहीं करूँगी. किन दोनों लोगों से? नेपोलिटन प्रिंस एंड काउंटी पैलेटाइन. So Nerissa is now going to talk about the third person. How say you by the French lord Monsieur Le Bon? Okay, so Portia, now Nerissa is asking that how do you think of the French lord, that is Monsieur Le Bon? So Portia is saying, God made him and therefore let him pass for a man. तो वो बोल रही है कि भगवान ने उसे बनाया है, एक आदमी बनाया है, तो हम उसे आदमी ही मान लेते हैं, बट वो आदमी मानने के लायक नहीं है. इन ट्रूथ आई नो इट इज़ अ सिन टू बी मॉकर. तो वो बोल रही है कि मैं जानती हूँ कि किसी आदमी का मजाक बनाना एक बहुत ही बड़ा पाप है, बट why he hath a horse better than a Neapolitan's, a better bad habit of frowning than County Palatine. तो वो बोल रही है, पर क्या करूँ, वो नेपोलिटन प्रिंस से भी ज़्यादा अपने आप की प्रेज़ करता है कि वो घोड़े को ऐसा कर सकता है, घोड़े की प्रेज़ करता रहता है, अपनी भी साथ में प्रेज़ करता है. ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज हॉर्सेस. वो नेपोलिटन प्रिंस से भी मीन्स ज़्यादा है, वो कम नहीं है नेपोलिटन प्रिंस से, वो उससे ज़्यादा ही है. मीन्स नेपोलिटन प्रिंस बातें ही करता रहता है हॉर्स के बारे में और अपनी प्रेज़ करता रहता है, और ऐसे ही ये नेपोलिटन प्रिंस से भी ज़्यादा प्रेज़ करता है अपनी. A better bad habit of frowning than the Count Palatine. तो बोल रही है जैसे Count Palatine is frowning, he is very serious, like that only he is much more serious than Count Palatine. He is every man in no man. तो वो बोल रही है he is every man इन नो मैन, मीन्स उसके पास हर एक आदमी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पर उसकी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं. मीन्स उसके पास हर एक कैरेक्टरिस्टिक है पर उसकी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है. इफ़ ए थ्रॉस्टल सिंग ही फॉल स्ट्रेट अ कैपरिंग. मतलब कि अगर कोई बर्ड गाना गाता है, कोई बर्ड चर्पिंग करता है, तो ही जस्ट फॉल स्ट्रेट अ कैपरिंग. अ कैपरिंग मीन्स ही ऑलवेज डांसेस. जब भी किसी बर्ड को सिंग करते सुनता है देन ही डांसेस. ही विल फेंस विद हिज ओन शैडो. मतलब ही वुड जस्ट टू डू शो ऑफ, वो अपनी ओन शैडो के साथ ही लड़ेगा, शो ऑफ करने के लिए कि मैं बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हूँ. इफ़ आई शुड मैरी हिम,
ओके। तो वो बोल रही है कि अगर मैं उससे शादी करूँगी तो इसका मतलब मैं 20 हस्बैंड से शादी कर रही हूँ, बिकॉज ही हैज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी वन बट ही इज़ नॉट हैविंग द हिज ओन पर्सनैलिटी। तो वो बोल रही है कि अगर मैं इस अकेले आदमी से शादी कर लूँगी तो मैं 20 हस्बैंड की मतलब बराबर है ये आदमी, तो 20 हस्बैंड के साथ शादी कर रही हूँ मैं। इफ़ ही वुड डिस्पाइज मी आई वुड फॉरगिव हिम। अगर वो मुझे नफ़रत करने लगता है, मुझसे नफ़रत करने लगता है, तो शायद मैं उसको माफ़ कर दूँ, ठीक है। फॉर इफ़ ही लव्स मी फॉर टू मैडनेस आई शैल नेवर रिक्वायर हिम। बट अगर वो मुझे पागलों की तरह प्यार करेगा, इफ़ ही वुड लव मी पैशनेटली, देन what would happen? I shall never require him. Means I would never give, I would return his love. Means I would never love him. So Nerissa is going to talk about the fourth person, that is Falconbridge. So what she is saying, Nerissa, what say you then to Falconbridge, the young Baron of England? So Falconbridge, he is a young Baron of England. Baron is a great position, it's a high position in the nobility. So she is saying the young noble of the England, Falconbridge. You know I say nothing to him, for he understand not me nor I him. तो शी सिंग कि तुम्हें पता ही है कि ना ही मैं उसे अंडरस्टैंड कर पाती हूँ और ना ही वो मुझे अंडरस्टैंड कर पाता है. ही हैथ नाइदर लेटिन फ्रेंच नॉर इटालियन एंड यू विल कम इन टू द कोर्ट एंड स्वेयर दैट आई हैव अ पुअर पेनीवर्थ इन द इंग्लिश. तो there is a barrier between Portia and the Falconbridge, that is language. Means तो वो बोल रही है कि ना ही उसे लैटिन आती है, ना ही उसे फ्रेंच आती है, ना ही उसे इटालियन आती है, ठीक है. और तुम जानती ही हो कि मैं इंग्लिश बहुत ही कम जानती हूँ, मतलब कि मुझे इंग्लिश ज़्यादा मुझे नहीं पता है. Okay, so he is a poor man's picture, but alas, who can converse with a dumb show? Means he is saying proper man. He is a perfect person, but he is very handsome, but he is perfect. But how can I converse with a dumb show? Means जो आदमी मैं विदाउट वर्ड्स किसी के साथ कैसे बात कर सकती हूँ. मीन्स अगर लैंग्वेज ही नहीं हम एक दूसरे की जानते तो मैं उसके साथ कैसे बात कर पाऊँगी. हाउ ऑर्ली ही सुटेड. तो वो आगे वो एक और बात बता रही है कि वो जो उसका ड्रेसिंग सेंस भी काफ़ी ऑड है. आई थिंक ही बॉट हिज डबलेट इन इटली. डबलेट मीन्स जैकेट इटली से लाया है. हिज राउंड हॉर्स इन फ्रेंच. हिज राउंड हॉर्स मीन्स हिज टाइट्स मीन्स हिज पैंट्स from France. His bonnets in Germany. Bonnets means his hat from Germany. And his behavior from everywhere. तो बोल रही है कि उसकी जो जैकेट आई होगी वो इटली से आई होगी, उसकी जो पैंट्स वगैरह आई होंगी वो फ्रांस से आई होंगी, उसकी जो बॉनेट मीन्स हैट आई होगी तो वो जर्मनी से, और उसका जो बिहेवियर, उसकी जो मैनर्स है वो मिक्सड ही है, मतलब हर एक पार्ट के, दुनिया के हर एक पार्ट से आई होगी. तो अब नेरिसा बात कर रही है. व्हाट डू यू थिंक ऑफ द स्कॉटिश लॉर्ड हिज नेबर. तो वो बोल रही है दैट ही हैथ so what she is saying, that he hath a neighborly charity in him, for he borrowed a box of the heir of the Englishman. तो वो बोल रही है कि उसने तो खुद किसी की सिक्योरिटी ली थी बदला लेने के लिए. क्या हुआ था एक बार कि he borrowed a box of ear of the Englishman. तो एक Englishman था, a person, he was an English, okay. तो उसने he borrowed an ear means कि उसने उसको slap means he just slapped him. To whom he slapped the Scottish Lord. तो उसने क्या किया, वो बहुत ही ज़्यादा कॉवर्ड है. स्कॉटिश लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा कॉवर्ड है. तो जब इंग्लिश मैन ने उससे थप्पड़ मारा तो उसने पता क्या किया, उसने कहा कि मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा, ठीक है, तब तक मैं अपने आप को एबल बना लेता हूँ, अपने आप को एलिजिबल बना लेता हूँ. तो उसने पता क्या किया, उसने फ्रेंच मैन को अपनी श्योरिटी बना ली. मीन्स फ्रेंच मैन को अपने साइड कर लिया और फिर उससे बदला लिया. मीन्स ही इज़ वेरी कॉवर्ड. उसने फ्रेंच मैन का साथ लिया और फिर उसने बदला लिया. मीन्स ही इज़ नॉट वेरी ब्रेव. तो यही उसने बोला पोर्शिया ने. तो अब बात हो रही है लास्ट प्रिंस की, लास्ट सूटर की,
Nerissa. Now Nerissa is saying, how like you, the young German, the Duke of Saxony's nephew. So this person is a bit drunkard, means he drinks a lot. So Portia is saying, very verily in the morning when he sober, means वो बहुत ही worst होता है उसका behavior when he wakes up in the morning when he is sober, means when he is not drunk and he wakes up in the morning, he is just, his behavior is just worst, and most vilely in the afternoon when he is drunk. और जब वो in the afternoon when he is drunk तो उसका और भी ज़्यादा worst होता है behavior. When he is best he is a little worse than a man. जब वो ठीक होता है he is normal तो वो एक आदमी से बदतर होता है. अगर हम उसे नॉर्मल भी कहें, अगर वो नॉर्मल भी हो, अगर वो ड्रंकर्ड ना हो, तब भी ही इज़ अ लिटल वर्स देन अ मैन, एक ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा वर्स्ट है. एंड व्हेन ही इज़ वर्स्ट मीन्स जब उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हो, बहुत, ही इज़ वर्स्ट. ओके, ही इज़ लिटल बेटर देन अ बीस्ट. तो एक बीस्ट होता है ना, वो उससे थोड़ा सा बेटर है. मीन्स एक वो थोड़ा सा ज़्यादा, मैन एक आदमी से थोड़ा सा ज़्यादा वर्स्ट है और एक बीस्ट से थोड़ा सा बेटर है. मतलब कि वो आदमी से भी बदतर है, ठीक है. और एक जो बीस्ट होता है जानवरों से थोड़ा सा बेटर है. And the worst fall that ever fall, I hope I should make a shift to go without him. तो वो बोल रही है कि काश वो सही जो कास्केट है वो चूज़ ना ही करे तो अच्छा है, और जो वर्स्ट मेरे साथ होना है वो अपने आप हो जाए, मैं इससे शादी नहीं करना चाहती. Okay, so Nerissa is saying, if he should offer to choose the right casket, you should refuse to perform your father's will if you should refuse to accept him. वो बोल रही है कि अगर तुम्हें इतना ही मतलब नहीं पसंद है, इतने ही तुम हेट करती हो उसे, और अगर उसने राइट कास्केट चूज़ कर ली, तो क्या तुम अपने फादर की विल को तोड़ दोगी? सो शी इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, Nerissa. So now Portia is giving the answer. Therefore, for the fear of the worst, I pray thee set a deep glass of Rhenish wine on the contrary casket. तो बोल रही है कि अगर वो गलती से भी राइट कास्केट चूज करेगा, तो जो कॉन्ट्रेरी कास्केट होती है, मीन्स रॉन्ग कास्केट, उसके ऊपर एक रेनिश वाइन रख देना. रेनिश वाइन एक वाइन होती है जो राइन वैली के ग्रेप से बनी होती है, तो वो रख देना, एक ग्लास रख देना एक कॉन्ट्रेरी कास्केट पे, गलत कास्केट पे, तो वो पक्का उसे चूज कर लेगा जहाँ पे वाइन पड़ी होगी. फॉर इफ द डेविल बी विद इन एंड दैट टेम्पटेशन विदाउट, आई नो ही विल चूज इट, आई विल डू एनीथिंग. सो व्हाट शी इज सेइंग कि मुझे पता है वो वही चूज करेगा जहाँ पे वाइन पड़ी होगी. आई नो ही विल चूज़ इट, ओके, आई विल डू एनीथिंग. तो वो कहती है कि कुछ भी करो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. Nerissa, आई विल बी मैरिड टू अ स्पॉन्ज, मतलब कि मैं कुछ भी कर लूँगी Nerissa, पर उस ड्रंकर्ड से शादी नहीं करूँगी. ड्रंकर्ड मीन्स द पर्सन हु ड्रिंक्स अ लॉट. फिर Nerissa is saying, you need not fear, lady, the having any of these lords. They have acquainted me with their determinations, which is indeed to return to their homes and to trouble you with no more suit, unless you may be born by some other sort than your father's imposition, depending on the casket. तो बोल रही है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है लेडी, बिकॉज उन्होंने मुझे पहले ही अपना डिसीज़न बता दिया है कि जो 6 के 6 प्रिंस हैं वो कह रहे हैं कि वो अपने घर वापस लौट जाएंगे. जब उन्होंने ये 3 कंडीशन सुनी, पहले ये 3 कंडीशंस थी क्या, मैंने आपको बताई हुई हैं. फर्स्ट 3 कंडीशंस दैट कि अगर आपने रॉन्ग कास्केट चूज़ की तो फर्स्ट इज दैट यू हैव टू नॉट मैरी एनी लेडी. Okay, second, that you have to not tell which casket you chose, and the third one that you have to go from that place after choosing the wrong casket without saying anything, silently. So what is happening? So she is saying वो ये बात सुनकर अपने घर जा रहे हैं सभी लोग. Nerissa बोल रही है the suitors are going back unless you may be warned by some other sort. तो बोल रहे हैं कि वो अपनी शक्ल कभी भी नहीं आपको दिखाएंगे जब तक कि आपको कोई आपके जो फादर की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको कोई अच्छा हस्बैंड नहीं मिलता. ओके,
तो पोर्शिया बोल रही है इफ़ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज सिबिला। तो सिबिला एक लेडी थी जो रोमन माइथोलॉजी में कह सकते हैं एक रोमन गॉडेस थी जो फॉर्च्यून लिखती थी। अगर सिबिला वॉज अ वेरी ओल्ड लेडी मीन्स उसको वरदान था कि हाउ मैनी, एक बार क्या हुआ, अपोलो दैट इज़ ऑल्सो ए गॉड, अपोलो ने उसे वरदान किया जितने भी सैंड ग्रेन्स, जितने भी सैंड तुम्हारे हाथ में है उतने ही तुम्हारे ईयर्स होंगे। तो सिबिला को ये वरदान था। ओके, या तो वो बोल रही है कि या तो मैं बूढ़ी होके मर जाऊंगी क्योंकि कोई तो आएगा ही नहीं, सब तो डर जाएंगी, और आई विल डाई एज चेस्ट एज डायना मीन्स या तो मैं वर्जिन ही मर जाऊंगी मीन्स विदाउट मैरिंग आई विल डाई अनलेस आई बी ऑब्टेन्ड बाय द मैनर ऑफ माई फादर्स विल। जब तक कि मैं अपने फादर की विल तक नहीं होती या तो मैं सिबिला की तरह मर जाऊंगी या डायना की तरह। सिबिला इज़ अ ओल्ड लेडी, डायना इज़ अ यंग लेडी मीन्स हु इज़ जस्ट डाइंग without marrying anyone. I am glad this parcel of words are so reasonable means जो सूटर्स हैं, ये जो सूटर्स हैं ये कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट है, दे सो रीजनेबल फॉर देयर इज़ नॉट वन अमंग देम बट आई डोट ऑन हिज एवरी एब्सेंस एंड आई प्रे गॉड ग्रांट देम अ फेयर डिपार्चर। तो वो बोल रही है कि भगवान करे कि वो अच्छी तरह से चले जाएं यहाँ से, और वो कितने इंटेलिजेंट हैं उन्होंने ये सोच लिया। हेयर पोर्शिया सिंग दिस थिंग बिकॉज शी इज़ ऑल्सो नॉट लविंग एनी वन। Okay, so up to here we have discussed and our last page is left. We would be discussing in the part 2. So till then keep studying. Thank you.